احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روایتوں کے اندر درود شریف کا بہت ہی فضیلت بیان کیا گیا ہے۔ درود شریف یہ ایسی درود ہے جو انسان اسے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے اسے جبریل امین بھی نہیں گن سکتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ ابھی مجھے حکم کریں تو میں اس دنیا کے اندر اس زمین پر کتنے بارش کے قطرات برس چکے ہیں، اس دنیا کے اندر کتنے درخت کے پتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم کریں اس دنیا کے اندر کتنے شجر و حجر ہیں ان سب کو میں گن سکتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر آپ پر جو کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اسے میں کبھی نہیں گن سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں رسول کائنات سے عرض کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو میں گن سکتا ہوں، یہاں تک کہ بارش کے ہر ایک قطرات کو میں گن سکتا ہوں، مگر آپ پر جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اسے میں نہیں گن سکتا۔ ایک بار پھر سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے مبارکباد ہیں صاحب مکان کہ جو جشن عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا، رچایا سجایا بسایا۔ بے شک جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا بھی خود قریب ہوتا ہے، اور محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بے شک آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اس محفل پاک کو رچانے اور سجانے بسانے والے کو کہ جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فرشتوں کو بھیج کر فرشتے اپنے پر سے وہاں پر سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب یہ میلاد پاک ختم ہو جاتا ہے یہ تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ رب کائنات پوچھتا ہے میرے فرشتے تم لوگ کہاں پر تھے؟ حالانکہ رب کائنات کو معلوم ہے، پھر بھی فرشتوں سے ملاحظہ کر رہا ہے، فرشتوں سے سننا چاہتا ہے، عرض کرتا ہے میرے فرشتے تم لوگ کہاں تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں میرے پاک پروردگار عالم فلاں جگہ پر فلاں بندہ تیرے نبی کا ذکر سجایا ہوا تھا، تیرے محبوب کا ذکر سجایا ہوا تھا، اس میلاد نبی میں ہم لوگ شامل تھے، اور تمام میلاد محفل کرنے والوں کے لیے اور تمام محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے ہم لوگ دعائیں کر رہے تھے، یا رب قدیر ہم لوگ گواہ بنتے ہیں ان تمام محفل میں بیٹھنے والوں کی تم مغفرت فرما دینا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ محفل پاک سجانا کتنی بابرکت ہے، یہ محفل پاک سجانا کتنے ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے
बिल्कुल नबी कायनात भी तशरीफ आया करते हैं, गौसे आजम भी आया करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये जिक्र मिलादे नबी हमको मनाना चाहिए, हमको सजाना चाहिए, हमें करना चाहिए। इसे हमारे ऊपर रहमतें बरसती हैं और फरिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत भी किया करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, ये कुर्बानी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी रखा गया है। ये कुर्बानी क्या चीज होती है? जैसा कि मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, इन्ना आतैना अल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बेशक हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानियाँ करते हैं और नमाज अदा करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, यह कुर्बानी हम क्यों करते हैं? यह कुर्बानी हमारे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम नामे नमरूद की दुश्मनी इतनी थी कि नामे नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को एक जंग किया करते थे, उस दोनों में मुकाबला हुआ करता था। एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को नामे नमरूद फैसला इकट्ठा करता है और तमाम लोगों को इकट्ठा करने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम को खत्म करना, निस्तो नाबूद करने के बारे में फैसला लेता है। तरह तरह के लोगों ने उस पर फैसला दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंगल में छोड़ दिया जाए और उन्हें बस्ती में आने का इजाजत ना हो। कुछ लोग ये फैसला बयान करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर और हाथ में जंगली से जकड़ दिया जाए और उन्हें दुनिया इस शहर में, इस आबादी में घूमने फिरने की इजाजत ना दी जाए। कुछ इस पर फैसला पर मुतबर होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम को एक आग के अंदर जलाकर निश्तो नाबूद कर दिया जाए, उन्हें जलाकर खत्म कर दिया जाए। इसी पर नामे नमरूद मुत्तफिक होता है और हजरत इब्राहिम सलाम को जलाने का फैसला लेता है। एक बहुत बड़ा आतिशकदा तैयार कराता है और उसमें जो है 1 माह तक लकड़ियां इकट्ठा करवाता है और वहां की औरतें उस पर मन्नत मांगा करती थी। जो औरतें बीमार होती वो मन्नत मांगती, अगर मैं बीमार से शिफा पा जाऊंगी, मैं बीमार से ठीक हो जाऊंगी, उस आतिशकदे में लकड़ियों को इकट्ठा करूंगी, उस आतिशकदे में लकड़ियों को जमा करूंगी। 1 माह तक जब लकड़ियां उस आतिशकदा में इकट्ठा हो जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब उस आतिशकदा में आग लगाई जाती है, उस आग की सूर्य इतने आसमान से बातें करने लगते हैं, यहाँ तक कि उस आग की आतिश और गर्मी इतनी फैल जाती है, उस बस्ती में रहना दुभर हो जाता है, उस शहर में रहना मुश्किल हो जाता है। उस आग के किनारे कोई जाने को तैयार नहीं है और हर कोई परेशान और हैरान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला तो डाला कैसा जाए, क्योंकि उसकी गर्मी, उसकी तपिश इस कदर है। अगर कोई परिंदा उसके फिजा से गुजरता है और परिंदा जलकर राख हो जाता है, अगर कोई उसके करीब जाता है वह इंसान उसकी तपिश और गर्मी से जलकर राख हो जाता है। इतने में शैतान हाजिर होता है, इब्लीस नमरूद हाजिर होता है और नामे नमरूद की बारगाह में हाजिरी देता है। अर्ज करता है नामे नमरूद, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का एक तरकीब बनाया है, एक तरीका बनाया है। एक मिंज़िन मशीन होती है, उसको बनाने का तरीका बताता है, उसे बनाया जाता है और मिंज़िन मशीन के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने की तैयारियां हो रही हैं। हर फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर आप हुक्म करें तो मैं पानी के शोले से इन तमाम बस्ती वालों को निश्तो नाबूद कर दूं, गर्क कर दूं। हवा का फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाजिरी देता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर आप हुक्म करें तो मैं हवा की झोंकों में इन तमाम बस्ती वालों को गर्क कर दूं, निश्तो नाबूद कर दूं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार में खड़े थे, रब्बे कदीर की मदद चाह रहे थे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त थे, खलील थे। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि मेरी मदद मेरे रब्बे कदीर जरूर फरमाएगा। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों की मदद को तलब नहीं करते हैं, मिंज़िन मशीन के जरिए जैसे उस आग में डाला जाता है, डालने से पहले रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है ऐ जिब्रील अमीन, सिदरतुल मुंतहा पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? अरे देखो देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, अरे फौरन जमीन पर जाओ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग से बचा लो। कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत जिब्रील अमीन इतनी तेजी रफ्तार से जमीन पर आते हैं और आग में जाने से पहले और
आग में जाने से पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की वही सुनाते हैं, या नारो कुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जा, पूरे गुलजार बन जा। कसम खुदा की मुसलमानों, ये आयतें मुकद्दसा पढ़ते ही वो आग जो शोले भड़क रहे थे, वो आग जो गर्मी की तपिश पूरे दहशत फैलाए हुए थे, वो आग पूरे गुलजार हो जाती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सर्द और ठंडा हो जाती है। आप अंदाजा लगाएं, वो आग जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आतिश कदा और भड़क रहा था, अल्लाह तबारक व तआला जैसे ये आयत मुक़द्दसा पढ़ा, जिब्रील अमी के जरिए भेजा, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम के हक में ठंडी हो जा, इब्राहिम के हक में गुले गुलजार बन जा। नामे नमरूद अपने छत पर चढ़कर क्या देखता है, ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही है। वो भागते हुए नीचे आया और उसकी बेटी छत पर चढ़ी और सारे वाकया को देखी और अर्ज करती है, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अरे पहले तुम मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़कर पाक पाकीज़ा हो जाओ, वरना ऐसे आओगी ये आग जलाकर तुझे खाक कर देगा। कसम खुदा की मुसलमानों, और नामे नमरूद मुशरिकीन की बेटी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करती है और उसके अंदर जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाती है, उसके अंदर का सारा वाकया मुलाहिजा करती है, फिर बाहर आती है और वो मुसलमान हो गई है। आप अंदाजा लगाएं, वो लड़की कोई और नहीं, वो खातून कोई और नहीं, नामे नमरूद की बेटी है, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाकर निश्तो नाबूद का फैसला लिया था, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाकर खाक करने का फैसला लिया था, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आतिश कदा में डाला था, वो बेटी उसी की थी जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई है। अब नामे नमरूद अपने बेटी पर जुल्म सितम कर रहा है, उस पर कोड़े बरसा रहा है, उस पर तरह तरह की जुल्म सितम ढा रहा है। आप अंदाजा लगाएं, उसे यहाँ तक कि घर से बाहर कर देता है, घर से बाहर कर देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस लड़की की अपने बेटे के साथ निकाह कर देते हैं। अपने बेटे के साथ निकाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस खातून से जो औलाद देता है, उस खातून से जो औलाद पैदा होते हैं, कसम खुदा की मुसलमानों, वो औलाद कोई आम औलाद नहीं, बल्कि सब के सब नबूवत से सरफराज हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, उस नामे नमरूद की बेटी से जो बच्चे हुए, क्यों कि वो कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर ली थी। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की निकाह उस लड़की से कर देते हैं, उस लड़की से तकरीबन 20 बच्चे पैदा होते हैं। और 20 बच्चे कोई आम बच्चे नहीं, बल्कि सब के सब नबी पैदा होते हैं, सबको नबूवत से सरफराज किया जाता है। आप अंदाजा लग, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का की सरजमीन पर बहुत दुआएं करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद से सरफराज किया, औलाद से नवाजा। रवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 70 से 72 साल की उम्र में औलाद से नवाजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी भर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते रहे, अल्लाहुम्मा रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, अल्लाहुम्मा रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम, तू मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। यहाँ तक कि
जब इंसान औलाद से महरूम हो जाता है, जिस उम्र में उसे औलाद की तमन्ना और ख्वाहिश खत्म हो जाती है, बड़ी दुआएं के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाजा, औलाद से सरफराज किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म बजा लाने के लिए अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मक्का की सरजमीन पर तने तनहा अकेला छोड़ आते हैं। कुछ मशकीजे में पानी और छुआरा दे देते हैं। उस मक्का की सरजमीन उस वक्त चटियल मैदान सुनसान बयाबान था, यहां तक कि दूर दूर तक कोई चरिंदों पर नजर नहीं आते। उस मक्का की सरजमीन पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे और अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को छोड़कर वापस आ रहे हैं। उनकी बीवी अर्ज करती हैं, आप मुझे इस जंगलात में, इस खंडरात में, सुनसान चटियल बैबान में मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई जवाब नहीं। दूसरी मर्तबा अर्ज करती हैं, आप मुझे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस जंगल में छोड़कर कहां जा रहे हैं? हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुद्दत के बाद, बड़ी दुआओं के बाद मुझे औलाद से नवाजा है। आप हम दोनों को यहाँ चटियल मैदान में छोड़कर कहां जा रहे हैं? क्या ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है? उनकी बीवी पूछती हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर देखते हैं और कोई यूं अल्फाज होता है, हाँ हाँ ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। आप अंदाजा लगाएं, हजरत हाजरा पहले की माँ कितने सब्र शुक्र वाली थी। अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ मेरे सर के ताज, अगर ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, तुझे सुनसान चटियल मैदान में छोड़ने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है। बेशक आप मुझे छोड़ गए, मुझे उम्मीद है, मुझे सब्र है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए। आप अंदाजा लगाएं, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जो मशकीजे में चंद पानी और चंद खजूरें थी, कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जब खजूरें और पानी खत्म हो जाती हैं और उनके छाती का दूध खुश्क हो जाता है, बच्चे का शिकम सूख जाता है, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी की तलाश में सफा और मरवा का चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। सफा और मरवा एक पहाड़ का नाम है जो ऊंचाई पर है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी की तलाश करने के लिए सफा और मरवा पर चढ़ती और फिर वापस बच्चे के पास आती। कहीं कोई जानवर बच्चे को नुकसान तो न पहुंचा दिया हो, कहीं कोई जानवर बच्चे को नुकसान न पहुंचा दिया हो। फिर सफा और मरवा की चक्कर लगाती, दूर दूर तक देखती, कहीं कोई पानी नजर नहीं आया करता। आप अंदाजा लगाएं, इस तरीके से हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सफा और मरवा पर 7 मरतबा चक्कर लगाती हैं, 7 मरतबा चढ़ती हैं और फिर जब वापस आती हैं क्या देखती हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी से पानी का चश्मा उबल पड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अदा इतनी पसंद आई, हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस पहाड़ का चक्कर लगाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हाजियों पर उसे वाजिब कर दिया, जब तक हाजी उस सफा और मरवा का 7 मरतबा चक्कर नहीं लगा लेता है तब तक उसके हज कबूल नहीं हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, हजरत हाजरा आती हैं, अपने बेटे के पास क्या देखती हैं? चश्मा उबल रहा है, पानी का सैलाब जारी है। अपने सुरियानी जबान में उस पानी को जमजम थमथम यानी पानी रुक जा उसे मेल लगा देती है। बुजुर्ग फरमाते हैं, रवायतों के अंदर आता है, अगर हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने
है, उस पानी को ज़मज़म कह के रोका नहीं होता तो पानी दुनिया के अंदर सारी जगह पर फैल गया होता। आप अंदाजा लगाए, आज जो पानी इतना मोतबर हो गया है, आज वो ज़मज़म इतना शिफायाब हो गया है, अगर कोई इंसान कोई बीमार उसे शिफा समझकर पानी को पी ले, कसम खुदा की शिफायाब हो जाता है। अगर कोई इंसान आंख में अपने लगा ले, उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं। कोई इंसान अपने बदन पर मल ले, उसकी बदन की तमाम फूसी फूड़े ठीक हो जाते हैं। आज वो पानी इतना मोतबर हो जाता है, जितने हाजी हज करने के लिए जाते हैं उसे मोतबर समझकर अपने अपने घर लेकर के आते हैं। वही इस्माइल अलैहिस्सलाम है जिनके एड़ी से वो चश्मा उबल पड़ा है। हर शख्स चाहता है चश्मा उबल पड़े, हर शख्स चाहता है चश्मा उबल पड़े, मगर कोई जमीन पर एड़ी नहीं रगड़ता, मगर कोई जमीन पर एड़ी नहीं रगड़ता। वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वही इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने प्यारे अंदाज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, कितने प्यारे अंदाज में उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम है। आप अंदाजा लगाए, ख्वाब में देखते हैं ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप कुर्बानी करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह को उठते हैं और सब उठ के कुर्बानी कर देते हैं। फिर दूसरी रात भी यही ख्वाब देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह में कुर्बानियां करें। फिर दूसरे दिन भी उठते हैं 200 ऊंट की कुर्बानी कर देते हैं। फिर तीसरे दिन यही ख्वाब देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप कुर्बानी करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ऐ मेरे पाक परवरदिगार आलम तुम मुझसे चाहता क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा चीज हो, जो आप जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, उस चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि मेरे बेटे को कुर्बानी करने का हुक्म है, मेरे बेटे की कुर्बानी का हुक्म है। कल सुबह जब उठते हैं और सुबह उठने के बाद अपनी बीबी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त करते हैं ऐ मेरी बीबी एक बहुत बड़े बादशाह के वहां दावत पर जाना है, बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर देना। बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर देती हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगल में रस्सी और छुरी छुपा लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। आधे रास्ते गुजरते हैं, शैतान को बड़ी परेशानी हुई, शैतान को बड़ी खलल हुआ। अरे कहीं ऐसा ना हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने बेटे की कुर्बानी कर देते हैं और इससे सरफराज हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के खलील हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं। कहीं ऐसा ना हो इन्हें बहकाया जाए, इन्हें बहलाया जाए। वो शैतान के पेट में दर्द होता है, वो शैतान भागते हुए उनके बीबी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आता है और अर्ज करता है क्या क्या आप जानती हैं आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां ले जाया जा रहा है? उनके वालिद ग्रामी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां लेकर जा रहे हैं? उनकी मां अर्ज करती है अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक दावत पर लेकर जा रहे हैं। और शैतान बड़ा परेशान हुआ, अर्ज करता है अरे आपको नहीं मालूम है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं, उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों इतना सुनना था। वो माँ भी माँ कैसी थी, अर्ज करती है अरे तू तो शैतान मालूम होता है, तू तो इब्लीस मालूम होता है। अगर कसम खुदा की मेरे पास एक इस्माइल है, अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो जाए तो मेरे पास 100 इस्माइल क्यों ना हो, सब एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगी। आप अंदाजा लगाएं क्या आजकल की माँ ऐसा कर सकती है? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी दुआएं के बाद, रिवायतों के अंदर आता है 70 से 72 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से सरफराज करता है, औलाद से नवाजता है। क्या कोई अपनी औलाद को कुर्बानी देगा? वो शैतान जब हजरत हाजरा के पास उसकी चाल ना चली, वहां से बड़ी तेजी से भागा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। अर्ज करने लगा ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या आपको मालूम है आपके वालिद गिरामी आपको कहां लेकर जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मेरे वालिद मोहतरम मुझे एक बड़े बादशाह के वहां दावत पर लेकर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं
एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जबान मेरे वालिदे मोहतरम मुझे दावत पर ले जा रहे हैं। बुलाने का मतलब होता है दावत, मगर हम दावत को खाना समझ लेते हैं और वाकई यही मशहूर है कि दावत को खाना समझ लेते हैं कि खाने की दावत, बल्कि बुलाने की दावत है। तो हज़रत इस्माइल सलाम उस शैतान से कहते हैं, मेरे वालिद मोहतरम मुझे बड़े बादशाह के वहां दावत पर लेकर जा रहे हैं। वो शैतान बड़ा परेशान हुआ, अर्ज किया इस्माइल सलाम क्या आप नहीं जानते आपको आपके वालिद मोहतरम अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है। हजरत इस्माइल सलाम अर्ज करते हैं, तू तो शैतान नमरूद मालूम होता है, सुन ले मैं एक इस्माइल हूं। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझ जैसा 1000 भी इस्माइल दिया हो तो मैं अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए सब तैयार। वो शैतान जब इस्माइल सलाम के पास उसकी चाल न चली, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, अर्ज किया ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी मुद्दतों के बाद औलाद से नवाजा है, औलाद से सरफराज किया है। क्या आप एक ख्वाब को सच्चा करने जा रहे हैं? क्या आप एक ख्वाब को सच्चा समझ बैठे हैं? आप अंदाजा लगाएं, इंसान जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब तो झूठा हो सकता है, मगर जो नबी ख्वाब देखता है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अरे तू तो शैतान मालूम होता है, जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा हूं, तुझे क्या परेशानी हो रही है, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? मकामे मिना पर पहुंचते हैं और वहीं पर शैतान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारते हैं, कंकरी मारते हैं। 3 बार कंकरी मारने के बाद वो शैतान जमीन के अंदर धंस जाता है। और आज भी हाजी हजरात जो जाते हैं उसी मकामे मिना पर शैतान को कंकर मारते हैं, उसी मकामे मिना पर शैतान का नक्शा बना दिया गया है, उसी पर कंकरियां मारते रहते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने की तैयारी कर लेते हैं, कुर्बान करने की तैयारी कर लेते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, ऐ अब्बा जान क्या ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है? तो अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है मैं इसके लिए तैयार हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा आप अंदाजा लगाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फैसला लेते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म है कि मैं तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान कर दो, मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान करूं, तेरा क्या फैसला है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अब्बा हुजूर अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं एक इस्माइल क्या अगर 100 इस्माइल हो तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। आप बेझिझक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुझे कुर्बान कर दें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप से 3 वसीयत करते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे अब्बा हुजूर आप मेरे हाथ पैर को एक रस्सी से बांध दें, एक रस्सी से बांध दें और मुझे चित लेटा दें। और दूसरी वसीयत यह है, ऐ मेरे अब्बा हुजूर आप अपने आंख पर पट्टी बांध दें। और तीसरी वसीयत यह है, ऐ मेरे अब्बा हुजूर आप मेरे वालिद मोहतरम को ना बताएं, अगर वो पूछें आप उनसे कह दें बेटा खेल रहा होगा। और एक रवायतों के अंदर आता है इस्माइल सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे अब्बा हुजूर मेरे जो ये लिबास हैं जो खून में लहूलुहान हो जाए उन्हें मेरी मम्मी जान को दे देना ताकि वो उन्हें देखकर एक तसल्ली बख्श कर लिया करेंगी। आप मेरे हाथ पांव रस्सी से इसलिए बात है कहीं ऐसा ना हो जब आपकी छुरी मेरे गले पर चले, आपकी छुरी मेरे नाजुक गले पर चलना शुरू हो जाए तो मेरी तड़फड़ाहट की वजह से मेरे छटपटाने की वजह से आपके बदन पर खून लग जाए, आपके लिबास पर खून लग जाए और आप अपने आंख पर पट्टी इसलिए बांध लें कहीं ऐसा ना हो जब आप मेरे गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपकी मोहब्बत मुझ पर गालिब हो जाए और आपकी छुरी रुक जाए, इसलिए आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लें। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार है, छुरी तैयार है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी लगाते हैं, छुरी को चलाते हैं, वो छुरी काटने से महरूम है, उस नाजुक रस्म गले को नहीं काट सकती है। आप
اندازہ لگائیں اس چھری کو پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں. دوبارہ کوشش کرنے کے بعد وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہیں کاٹ رہی ہے بلکہ وہ چھری نمودار ہو جاتی ہے. اس چھری کو جلال میں آتے ہیں اور ایک بڑے چٹان پر اس چھری کو پٹک دیتے ہیں. پٹکنا ہی تھا, وہ پتھر دو ٹکڑے میں بٹ جاتا ہے. وہ چھری اس پتھر کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے. اس چھری سے دریافت کرتے ہیں, اے چھری یہ تو بتا, تو اتنا تیز دھار رفتار ہے جو اتنے بڑے پتھر کو کاٹ کر دو ٹکڑا کر دی ہے, اور اسماعیل کا گلا تو اس سے کہیں بہت زیادہ نازک ہے, اس سے کہیں بہت زیادہ نرم ہے, تو اسے کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ چھری کو اللہ تبارک و تعالی زبان گواہی عطا فرماتا ہے اور وہ چھری بول پڑتی ہے, اے ابراہیم علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے, اے چھری تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹنا. آپ اندازہ لگائیں, آپ کو جب نام نمرود نے آگ میں ڈالا تھا, آپ کو آگ کیوں نہیں جلا سکی؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اس لیے وہ آگ مجھے نہ جلا سکی. وہ چھری پکار کر کہتی ہے, اے ابراہیم علیہ السلام, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ایک مرتبہ حکم دیا, تجھے نہ جلا سکی. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے, اے چھری تو اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹنا. اے ابراہیم, آپ تو ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں, کیا میں آپ کی بات کو مانوں, کیا اللہ رب ذوالجلال کی حکم کی تعمیل کروں؟ آپ اندازہ لگائیں, اتنے میں جب تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو حضرت اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر لگاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امی کو پکارتا ہے, اے جبریل امی, سدرۃ المنتہا پر بیٹھے بیٹھے کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ارے فوراً جنت جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کو بجا لو اور ان کی جگہ پر دمبے کو رکھ. آپ اندازہ لگائیں, دو وجہ سے وہ چھری ابراہیم علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنے سے انہیں بچایا گیا. اس کی دو وجہ ہیں. اگر انہیں نہ بچایا جاتا, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا جاتا, تو آج ہم نوجوان اپنے بیٹے کی قربانی خدا کی بارگاہ میں کرنے سے محروم رہتے, اور ہمارے اوپر جو واجب تھا وہ ہمارے ذمہ رہ جاتا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نور محمدی کا نسل چلنے والا تھا اور ان کے پیشانے میں نور محمدی جگمگا رہا تھا. اگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو چھری کاٹ دیتی تو حضور کائنات کی نسل نہ چل پاتی. اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا اور ہم جیسے نکاروں کے لیے اسے آسان کر دیا گیا کہ اپنے دولت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے قربانیاں. ورنہ ہم نکارے لوگ اپنے اولاد کی محبت میں گھل مل کر رہ جاتے اور اولاد کی قربانیاں نہ کرتے, اور ہمارے اوپر رب کائنات کا جو واجبہ تھا وہ رہ جاتا اور اس کی گرفت میں ہم پکڑے جاتے. آپ اندازہ لگائیں, وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بچا بھی لیا گیا اور ان کی قربانی بھی قبول کر لی گئی. اسلام قربانیاں طلب کرتا ہے. اسلام کا نام ہی امتحان ہے. ہر مسلمان کی امتحان لی جاتی ہے کیونکہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل مانا تھا اور فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا, رب کائنات, کیا کوئی دنیا کے اندر بھی تیرا خلیل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, اے فرشتے, کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ فرشتے نے عرض کیا, یار پاک پروردگار عالم, میرے لیے اس سے مسرت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں دکھایا کہ آپ اس چیز کی قربانیاں دیں
ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ پیاری چیز ہو، فرشتوں نے بھی دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس بات پر ماننے کو یقین کیا کہ بے شک دنیا کے اندر بھی ابراہیم ایسا تیرا خلیل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم جیسے لوگ اپنے بیٹے کی قربانی کر سکتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ اور ہمارے اندر ایک چیز کی اور کمی بہت پائی جاتی ہے، جو ہمارے اوپر نماز فرض ہے اس سے ہم حضرات بہت ہی دور رہتے ہیں۔ فرض یوں سمجھ لے کہ ہمارے ذمے قرض کے برابر ہے، یعنی کہ جب تک ہم فرض کو ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے ذمے سے نماز کی فرض کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی انسان کسی انسان کا قرض لے لیتا ہے تو جب تک اس کے قرض کو واپس نہ کر دے اس قرض سے وہ بری نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسے بھی ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور انسان اس دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہے، اس دنیا کے روپیہ اور پیسہ کمانے میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے قوت اور نعمتوں سے نوازا ہے اس کی بندگی کو بھول گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس قوت و طاقت سے دولت کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، جس آنکھ سے ہم اس دنیا کو دیکھ پاتے ہیں، یہ سب رب کائنات کا دیا ہوا ہے۔ جب ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جو ہماری طاقت قوت ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، تو ہمیں چاہیے ان تمام نعمتوں کو پا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لائیں، اور جیسے جس وقت ٹائم ملے نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ہی میں فلاحی اور الہیت ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے تعلق سے نقصان اور فائدے بتاتا ہوں۔ تو ہم اب چاہیں کہ ہمیشہ جیسے جس وقت بھی وقت مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لائیں، اسے محروم نہ رہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن رب کائنات سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، تو ہم آپ رب کائنات کے بارے میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر برے فعل سے، ہر برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو کچھ ایسا نیک کام کریں جو جس طرح دنیا کے اندر ہماری زندگی خوشگوار اور رونق ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن ہماری زندگی خوشگوار اور رونق ہو جانا رہے۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ و مولانا
मोहम्मद इम्तियाज अहमद अमजदी को दावत सुखन दूंगा, जो कि बहुत ही मसरूफ रहने के बाद भी वक्त निकाले और यहाँ तक तशरीफ़ लेकर आए, क्योंकि आप तमामी हजरात को मालूम है ये बक़ैयत का जो सिलसिला चल रहा है 2 रोज़ से ज़िला गोरखपुर में मदरसे का खिदमत अंजाम देने के साथ साथ इमामत के भी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आइए मैं आप हजरात को ऐसे खतीब को आपके सामने रखूं जो शहर गोरखपुर से चलकर आपके दौलत खाने पर तशरीफ लाए हैं। शायर यूं कहता है कि अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामे दुरूद के अंदर। अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, नबी का जिक्र है शामे दुरूद के अंदर, और नबी पर दुरूदे पाक वही पढ़ता है, नबी पर दुरूदे पाक वही पढ़ता है जिनका हलाल खून है वजूद के अंदर, जिनका हलाल खून है वजूद के अंदर। और इन 4 मिसरों के साथ हजरत को दावत सुखन दूंगा कि सिर्फ चुंगी ही नहीं चढ़ लेंगे बहुत मारेंगे, सिर्फ चुंगी ही नहीं चढ़ लेंगे बहुत मारेंगे, पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। और जो ख्वाजा गरीब की अदावत करता फिरता है, और जो ख्वाजा गरीब की अदावत करता फिरता है, अरे उन्हें जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, उन्हें जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। माइक पर मौलाना इम्तियाज अहमद अमजदी साहब। स्टेट पे जलवा फरमा बावकार उलमाए कराम, हाजिरीन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।